there were three coding questions. I would say, इन डिटेल डेप्थ में सारा पूछा था मतलब। yeah, depth में सारा पूछा. Like, I don't think it's right because so if you have less time and if you want to focus more on developing projects and all, I think Python would be better. I did keep it in achievements, but they didn't really focus on. So hello everyone, welcome to the new episode of Tech Insights. Here it is Gaurav Gupta. So guys, in this entire podcast session, we are going to discuss entirely about the summer intern at Goldman Sachs. 1:1 सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, कैसे राउंड्स होते हैं, क्या इंटरव्यू वगैरह होता है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, हर चीज़ को हम एकदम डिटेल में जाकर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं या फिर उनको एक एग्जैक्ट पार्ट चाहिए स्पेसिफिकली गोल्डमैन सैक के लिए, उनके लिए पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। So today we have Naveen with us on our show. Hi Naveen, how are you? Hi, Gaurav. I'm fine. So Naveen, let's start with an introduction. Yes. So I'm Naveen. I'm currently in my third year, BTech in CSAML. I am mainly a competitive programmer. Like I have been doing competitive programming since my first year, and I've recently got selected for the summer intern at Goldman Sachs. All right. So एकदम हम पहले डीप में जाएंगे गोल्डमैन सैक के। उससे पहले अपना थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ हमें। क्या आपका बैकग्राउंड है, कैसे आपने स्टार्ट करा, जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपने बताया। सो उससे रिलेटेड थोड़ा बताओ अपना बैकग्राउंड। हाँ, तो जैसे मैंने बताया, मैं I have been doing competitive programming since first year. So I've always liked coding. So learning new things. And in my second year, I did my web development. थोड़े अच्छे से projects कर लिए. I did some web development projects and I'm also doing some other degree, which is an online degree. As India allowed in 2022 to do dual degree. So in this also I did a project which helped me in Goldman Sachs. So I did web development in my second year. Like I mostly focused on web development. अब third year में हूँ, तो मैं I'm trying to focus on AML. As you know, AML became a very major part in CSC. So you need to know ML. ऑल राइट। सो बेसिकली जो आपका इंटर्न था, ये ऑन कैंपस इंटर्न था, ऑफ कैंपस इंटर्न था? Off campus था. ऑफ कैंपस था। ऑल राइट। Off campus. ऑल राइट, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या थे? Eligibility मतलब कुछ भी नहीं था. Like you all 2026 graduates can apply. There's no restriction. अच्छा, मतलब ब्रांच वाइज भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे? एनीबडी? कोई restriction नहीं था. Yeah, anybody can apply. ओके, एंड सीजी वाइज भी नो रिस्ट्रिक्शंस? Yeah, no restrictions. They did say they'll check later, but I don't think there are any restrictions. ऑलराइट। सो जो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो उससे पहले कि राउंड स्टार्ट हो, तो उससे पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग भी हुई थी कि सीधा राउंड्स के लिए एलिजिबल हो गए थे? I think there was resume shortlisting, but majority students got selected. Like majority students को aptitude test का link मिल गया. ऑलराइट, तो अब हम स्पेसिफिकली थोड़ा राउंड से रिलेटेड बात करते हैं। सो कितने राउंड्स में हुआ था इन टोटल? Total 5 rounds. ओके, टोटल 5 राउंड्स थे। एंड पहला, जैसे आप अभी आपने बताया था, एप्टी राउंड से स्टार्ट हुआ था, तो क्या फॉर्मेट Yeah. था, कितने क्वेश्चंस थे, थोड़ा उसके बारे में बताना। Okay. So aptitude में basically there were 60 questions. So there were different sections in it. Like there were sections like logical, numerical, and other sections. So basically अगर आपने कुछ जेई और ऐसे ऐसे कॉलेजेस प्रिपरेशन किया तो ये आसान हो जाएगा. ऑलराइट, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी एग्जाम में? Yeah, there was negative marking, and this is the major point. Like many people got eliminated because they didn't see this. So this is like a major thing. ऑलराइट। तो इसके अंदर जितने भी एप्टी से ही रिलेटेड थे, मतलब बिल्कुल कोड वोड का कुछ टच नहीं था इसमें? No, no, no coding. Pure aptitude and mathematics. ऑलराइट। सो इसके बाद आपका सेकंड राउंड कौन सा हुआ था? Technical round. ओके, टेक्निकल राउंड में कैसा हुआ था, मतलब क्या चीज़ें थी इसमें? Technical round में there were three coding questions. I would say easy to medium, and there were 10 MCQs and 10 about yourself. ओके, तो जो MCQs were हम्म, yeah MCQs were based on maths and logical.
ओके, मतलब वो लॉजिकल थे, वो भी कुछ एज सच कोडिंग से रिलेटेड नहीं थे, थ्योरी से। ऑलराइट। कोडिंग से एक्चुअली दे वर आई गेस जावा क्वेश्चंस, लाइक कोड दे के पूछे, आउटपुट पूछे। जावा क्वेश्चन। इन जो आपने वो 3 क्वेश्चन कहे थे जो ईज़ी टू मीडियम में आप रेंज बता रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स में से थे डीएसए के? टॉपिक्स मतलब ऐसे टॉपिक्स नहीं थे, लाइक नॉट एग्जैक्टली टॉपिक्स, बट मोस्टली दे वर लॉजिकल क्वेश्चंस, इजी टू मीडियम ही है ना, तो दे वर लाइक आई थिंक वन क्वेश्चन वाज ऑन ग्रीडी, अच्छा, ऑलराइट। अदर टू आर प्योर नॉर्मल लॉजिक, लाइक लॉजिक आया तो कोड लिख सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स तो नहीं थे स्पेसिफिकली। ऑलराइट, तो इसमें आपको Like टाइम। there wasn't much time. Yeah, there was only 1 hour time. So coding questions, I think you'll only get 30 minutes. So that's why they didn't give that much hard question. एग्जैक्टली, हाँ, मैं वो टाइम पे पूछ रहा था। तो इसमें भी कुछ मार्किंग का चक्कर था, मतलब एमसीक्यू में नेगेटिव हो रही है, इसमें भी ऐसा कुछ था? Negative, yeah. Yeah, MCQs में negative है. ऑलराइट, ओके। तो मतलब आपके इसमें तीनों तीनों क्वेश्चन और एमसीक्यू सब सही हो गए थे, रिजल्ट बाद में ऐसे दिखाते हैं या फिर बस सिलेक्शन का आता है मेल? Selection का आता है. They don't give any result. ऑलराइट, तो इसके बाद कौन सा राउंड हुआ था फिर? There was interview round. So interview में ही 3 rounds थे. ऑलराइट, 3 राउंड्स थे। ओके, ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले राउंड में क्या हुआ Yeah. था डब्ल्यू के? पहले राउंड में एक डीएसए क्वेश्चन पूछा था और there was some questions on my resume. ऑलराइट, तो डीएसए क्वेश्चन किस लेवल का था, मतलब अकॉर्डिंग टू यू? I think डीएसए मीडियम था. ओके, मीडियम लेवल का था। एंड रिज्यूमे में क्या, मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें पूछी थी? प्रोजेक्ट के बारे में दे वर लाइक आई पुट सम स्किल्स, सो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे, लाइक वेदर आई नो दी स्किल्स और नॉट, दे आस्क्ड सम क्वेश्चंस ऑन दैट. ऑलराइट, मतलब पहले राउंड में इतना ही पूछा था, सम डीएसए इतना ही कुछ पूछा। ऑलराइट, एंड देन कमिंग ऑन टू द सेकंड राउंड, उसमें क्या था? उसमें डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रिव्यू था, लाइक जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने रखे हैं रिज्यूम में, दे आस्क्ड अबाउट दैट, लाइक कंप्लीटली. एंड देयर वाज ए object oriented programming question, there was a DSA question, and also an SQL question. ऑलराइट, मतलब ये वाला इंटरव्यू पहले वाले से बड़ा था, आई गेस, जिस हिसाब से आप। थोड़ा बड़ा था. एग्जैक्टली। This is a main round. ऑलराइट, तो इसमें मतलब आपके प्रोजेक्ट के बारे में इन डिटेल डेप्थ में सारा पूछा था मतलब? Yeah, depth में सारा पूछा, like you have to explain whole project, and sir will also ask some questions on that in middle. अच्छा, ऑलराइट, ओके, तो पहले प्रोजेक्ट वाला पार्ट हो गया था, किसमें जो आपको से डीएसए का क्वेश्चन पूछा था, तो वो किस लेवल का था? Hmm. DSA question तो I would say medium था again. ओके, मीडियम लेवल का था। एंड उसके अलावा आपसे एसक्यूएल पूछा था, एंड एक और चीज आप कौन सी बता रहे थे? Object oriented programming. ओके, मतलब वो थ्योरी सब्जेक्ट जो होते हैं, जो हमें करने होते हैं। Theory था. Hmm. ऑलराइट, SQL भी actually theory पूछा. ओके, एसक्यूएल आ गया एंड ऊप्स आ गया आपका। Hmm. ओके, Like एंड जो फाइनल राउंड हुआ था उसमें क्या बिहेवियरल क्वेश्चंस थे थर्ड राउंड में? थर्ड राउंड में मेरा तो रिज्यूम वॉक थ्रू हुआ. मतलब कंप्लीटली रिज्यूमे को चेकआउट करा, मतलब यही होता है ना? यही. Yeah. I think some other people had some other things like some technical round, but I had a resume walkthrough. ओके, मतलब ये चेंज हो रहा था, वो उनकी मर्जी है, वो कि। Change हो रहा, yeah, it's not constant. ऑलराइट, सो कंप्लीट प्रोसेस में कितना टाइम लगा था, मतलब जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा टिल द टाइम यू रिसीव योर ऑफर लेटर, तो कितना टाइम लगा था Yeah, प्रोसेस में? I applied. I think I applied in August, and पूरा process होने के I think it was done in December. I got this mail in December. ऑलराइट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स 3.5 मंथ्स लगे थे पूरा Like प्रोसीजर में। ऑलराइट, सो इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर आपके हिसाब से आपको मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट क्या लगा था? difficult part तो aptitude है, क्योंकि बेसिकली इस राउंड में बहुत कंपटीशन है, तो यू डोंट नो लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू डू, एंड दिस इज लाइक मेन एलिमिनेटरी राउंड, लाइक व्हेन यू गो टू इंटरव्यू यू विल नो लाइक आई टोल्ड गुड, आई डिड वेल, बट इस राउंड में तुमको पता नहीं चलेगा,
और प्रिपरेशन इज नॉट रियली एनफ, लाइक कोडिंग ऐसा नहीं है ना, तो यू डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर, तो दिस इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। एग्जैक्टली मेरे सब क्वेश्चंस भी थोड़े डिफिकल्ट थे। एग्जैक्टली क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट है और आई थिंक अराउंड इस वजह से भी डिफिकल्ट है क्योंकि सब स्टूडेंट्स ने भरा है इस फॉर्म को पहला, जैसे कि आपने बताया। एग्जैक्टली। तो इसमें कंपटीशन और it was काफी ज्यादा बहुत। सबको लिंक मिला है, सबने भरा है, कोई ब्रांच और सीजी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस वजह से आई थिंक इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग में और जो उस टाइप के क्वेश्चंस था उसमें थोड़ा ट्रिक होता है, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले राउंड के बाद आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स फिल्टर आउट हुए होंगे। तो सेकंड या राउंड आई में थिंक मेजॉरिटी वर फिल्टर्ड आउट। या एग्जैक्टली ऑलराइट। सो जो जो आपने बताया जैसे आपने 3 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे, तो उन तीनों इंटरव्यू राउंड्स में आपसे कोई सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था? आई wasn't asked any system design question. I think my friend was asked. ऑलराइट, मतलब पूछ रहे थे इसके इंटरव्यूज़ में सिस्टम Right. डिज़ाइन रिलेटेड? Yeah. ओके, ओके। एंड इन तीनों इंटरव्यू राउंड्स में आपका कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया हो, जो आपको लगा हो कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था? Unexpected question. I think fortunately I didn't get any और such question. Yeah. काफ़ी स्टूडेंट्स का आता है तो इस वजह से फ्रेंड्स ये पूछते हैं। ओके। तो अब हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब राउंड्स वगैरह से रिलेटेड बात कर ली। अब जो है मैं पॉडकास्ट मेनली अब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए शूट करते हैं। तो उसमें क्या है, एक स्टूडेंट का ना स्टार्टिंग से ही बहुत डाउट रहता है, जो बोलते हैं कि भाई डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट। अब पहले तो मैं ना सबसे पहले आपसे ना यही पूछना चाहता हूँ कि ये डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट सही बोल रहा हूँ मैं कि नहीं बोल रहा हूँ? ये स्टूडेंट सही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? I don't think it's right because it's not like DSA versus development. When you are applying, like if you are good at something, like completely good, like projects are very good, then I think it's okay. But if you are okay in both, then I think you should balance both. You can't like completely ignore something. Like projects किए तो if it's like a very big project, like कुछ startup के level का हो गया तो तब अच्छी बात है। DSA की ज़रूरत है. It's not like you can't completely ignore it. You have to focus because company wants to test your knowledge, like your logical thinking. So a DSA question is like best thing for them to do that. So if yeah, DSA को तो इग्नोर नहीं कर सकते, पर I think projects takes more time than DSA. Like to do, like projects take more time. DSA इतना नहीं लगता. If you like practice daily, I think you can easily do it. ऑलराइट। तो बेसिकली मेरा भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यही रहता है कि दोनों को बैलेंस आउट करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी ज़्यादातर कंपनीज़ के अंदर अगर हम बिग कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं तो स्टार्ट ही डीएसए राउंड से होता है, जो भी हमारा कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। सो अगर आपने डीएसए ही नहीं कर रखा, तो आप प्रोजेक्ट वाली चीज़ तक तो पहुँचोगे ही नहीं, वो तो इंटरव्यू में पूछेंगे ना। तो बेसिकली ये 2 ही पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं कि अपना मैनेज करके चलो। एंड जैसा कि आपने कहा तो मेरे हिसाब से भी मैं जैसे डीएसए और डेवलपमेंट करता हूँ, तो डेवलपमेंट वाले पार्ट में मुझे भी लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। डीएसए में एक बार कॉन्सेप्ट फिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, वो समझ लोगे तो उसके बाद क्वेश्चन्स आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो निकल जाएँगे। इट्स समथिंग लाइक Yeah, दैट ओनली। exactly. एग्ज़ैक्टली। एंड और जो कंपनीज़ होती हैं उनको बेसिकली तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक करना होता है। इसलिए वो स्टार्टिंग के राउंड्स में डीएसए पूछती हैं। एंड बाद में क्योंकि एट द एंड कंपनीज के अंदर डीएसए कोई डायरेक्टली तो यूज होता नहीं है। मेन तो आपका डेवलपमेंट वाला पार्ट यूज होता है, मतलब कि कैसे आपको करना है। एंड और अलग अलग एल्गोस यूज होती हैं, लेकिन टू चेक योर प्रोग्रामिंग स्किल्स वो चीज़ यूज होती है। सो मेरे हिसाब से भी यही इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूंगा, जैसे कोई स्टूडेंट फ्रेशर है, अभी जस्ट कॉलेज में इंटर करा है, ठीक है, तो उसको अगर डीएसए और डेवलपमेंट पे स्टार्ट करना है तो वो किस तरीके से अपना स्केड्यूल मतलब करे कि मेरा फर्स्ट ईयर में सिर्फ डीएसए करे, सिर्फ डेव करे, या किस तरीके से मैनेज करे दोनों को? फर्स्ट ईयर में मैंने जैसे बताया आई डिड कोडिंग इन फर्स्ट ईयर। लाइक फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि कॉलेज में ज़्यादा प्रेशर होता है, लाइक यू जस्ट एंटर्ड एंड कॉलेज एनवायरनमेंट इतना सेट नहीं होगा, यू विल बी अंडर प्रेशर, लाइक मिड्स और कुछ आए तो यू विल बी वेरी स्ट्रेस। तो इतने स्ट्रेस में आई डोंट थिंक एनीवन कैन मैनेज बोथ डीएसए एंड वेब डेवलपमेंट। So I would say focus on coding. Like coding निकाल के you can learn some programming language and you can learn some DSA concepts basics से. Basically I would say learn programming language in first year.
ऑलराइट, मतलब फर्स्ट ईयर पे अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस रखते हैं, फ्रॉम सेकंड ईयर हम थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं, इतने कॉलेज विद योर सेटल Skill है। development. हम्म, Yeah, exactly. एग्जैक्टली, ओके। अब जैसे हमने अभी डीएसए और डेवलपमेंट की बात करी है ना, आपने कहा जैसे फर्स्ट ईयर में हम कोडिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें, तो उस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोले तो प्योर डीएसए बोले तो जावा और सी प्लस प्लस यूज होते हैं, पर डेवलपमेंट के आने के बाद लाइक इफ यू वांट टू डू देन इट्स लाइक पाइथन इज यूज्ड इन बैक. Like generally JavaScript is used for both full stack. But if you learn Python, if you want to do some project with Django or Flask in backend, then it will become easy. So if you have less time and if you want to focus more on developing projects and all, I think Python would be better. Even I do coding with Python. Yeah. ओके, ऑलराइट। एंड अगर किसी स्टूडेंट को सी प्लस प्लस और जावा में से चूज करना हो, तो किसको करेंगे चूज? I think Java is a good language. Like C++ अच्छी है. I'm a competitive programmer, so I use C++. I really like C++, but Java क्यों मतलब कि it's like used much more than C++. Like when you go into industry, people use Java because it's very safe and अच्छी है. Like object-oriented programming and all these concepts are very strong in it. So Java used more. Yeah, it will be useful in your future. ओके। सो जैसे हमने डीएसए डेवलपमेंट की बात करी है, हमने ये भी देख लिया कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको किस टाइम किस हिसाब से सीखनी चाहिए। अब जब हम डीएसए की डेवलपमेंट की बात करते हैं, अब जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू में थ्योरी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो उसी चीज़ के बारे में मुझे पूछना है कि जैसे 3-4 थ्योरी टॉपिक होते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ऊप्स, डीबीएमएस वगैरह। तो ये चारों थ्योरी कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू यू मतलब इम्पोर्टेंट है, या फिर हम इसको मतलब लास्ट टाइम तक मतलब रख सकते हैं, लास्ट टाइम पर कर सकते हैं? I think majority of this will be done in college, right? कॉलेज के वक्त में हो गए इनमें, तो थोड़ा बेसिक्स का आइडिया तो होगा. Like you have written sem exams and all, so you must have idea. So when you have interview, like before 1 or 2 weeks, you can just open them and revise. There are many sources like Weeks for Geeks है, अच्छी source है. So you can revise from that. It's really good. I think that is better instead of learning like opening every month and learning. That's like time waste. तो एक बार अच्छे से सीख लो और लास्ट में रिवाइज कर लो. एग्जैक्टली, मतलब मेरा ओपिनियन भी यही रहेगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो सीएसआईटी ब्रांचेस से नहीं होंगे, तो उनके सेम एग्जाम्स में ये टॉपिक्स नहीं होंगे। तो उनको भी क्या करना है, ऑनलाइन आपको जैसे नवीन ने बताया आपको कि गीक्स फॉर गीक्स एंड और भी प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिल जाएंगे इनके सोर्सेज। तो क्या करना है, जब भी आपका ब्रेक वगैरह हो, तो एक बार सोर्सेज से पूरा स्टडी कर लो अच्छी तरीके से, ताकि इंटरव्यू से फिर वैसे ही 1-2 हफ्ते पहले ना बस जस्ट एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि रटने वाली चीज़ से तो फिर कुछ भी फ़ायदा होगा ही नहीं, वो भूल ही जाओगे बार-बार। तो इट्स बेटर कि ब्रेक वगैरह में एक बार मतलब अच्छी तरह कर लो एंड उसके बाद रिवाइज़ कर लेना। तो यही बेस्ट अप्रोच रहती है एंड ये इम्पोर्टेंट रहते हैं इंटरव्यू के अंदर। Yeah. And also one more thing, I think when you learn SQL, I think it's important to solve some questions on deep. Like many people learn SQL, joins वगैरह सब कुछ सीख लेते हैं, but when it comes to solving a question, they're not able to do it. Like they don't know where to start. So और coding to you always do, but many people ignore SQL. I didn't get a SQL query, but if you get, you should be able to do it, or else it leaves a bad impression. ऑलराइट। तो ये चीज़ तो मुझे भी मतलब अभी पता लगी है। तो डेफ़िनेटली यार आप सबको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, एसक्यूएल क्वेरीज़ एंड उसके क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है। आई थिंक लीड कोड पर ही मतलब मिल जाएँगे हमें, सिंपल एसक्यूएल। There are good questions. Yeah. ऑलराइट, ओके। सो जैसा अभी आपने स्टार्टिंग से आप बता रहे हैं कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हैं। तो सबसे पहले तो मेरा एक ही क्वेश्चन था, अगर कोई स्टूडेंट जो है मतलब उसको इंटरव्यू क्रैक करना है, वो डीएसए राउंड्स होती है स्टार्टिंग में, सो इज़ इट एसेंशियल और नेसेसरी टू बी अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर? I wouldn't say essential because DSA is something that you can learn, like even without completely being focused on it. Competitive programming, matlab you do contests and in platforms. DSA, matlab I think it's just enough to do few contests in lead code. You need not go to platforms like CodeChef and Codeforce.
It's like more math based and more logical thinking. But DSA में इतना नहीं है. Like you need to know how to apply right concepts in the right place. That's it. ऑलराइट, मतलब अगर हम देखेंगे तो अगर कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहता है, वो और चीज़ों पे फोकस करना चाहता है, सो वो डीएसए नॉर्मल अपना जैसे लीड कोड पे प्रैक्टिस कर सकता है एंड उसके बाद ही विल बी एबल टू क्रैक दैट पर्टिकुलर राउंड जो भी रहेंगे। Yeah, he can do surely do it. Yeah. ऑलराइट, तो ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। लेकिन अब फॉर एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट जो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में एंटर करना चाहते हैं, तो अब वो किस तरीके से एंटर करे, कैसे स्टार्ट करे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? Yeah. So as I told, if you want to seriously do competitive programming, I think everyone has seen their first curriculum, like CSIT fair branches the student. Yeah. So those people can slowly try to switch to C++ and start their competitive programming. Like they can start on CodeChef. It's very simple to start there. Then slowly they can move to CodeForces because CodeForces is the major competitive programming platform. So you have to give regular contests, solve the problems, and try to learn something new, like some new algorithm or some new data structure. And like this, you can develop in competitive programming. ऑलराइट, सो जैसे कि मेन जो जैसे आपने प्लेटफॉर्म्स बताया कोड फोर्सेस और कोड शेप, सो इनकी रैंकिंग मतलब आपके जैसे इंटरव्यू दिया था वहाँ पर तो उसमें मैटर करी थी? जैसे आपने कहा रिज्यूमे वॉक थ्रू हुआ था, सो उसमें कुछ ऐसा मतलब हुआ था कि मतलब ये हाईलाइट हुई हो? I did keep it in achievements, but they didn't really focus on. Like they were more majorly focusing on project. ओके, तो जैसे मैंने बताया, it's like DSA is like them for them, just like how to see a person is good at logical thinking or no exact problem solving. So they didn't see ratings exactly, like at least in this interview. Uh, तो ratings important तो है. Like if you are competitive programming, they are important. But if you don't want to go to CP, then I don't think it matters much. ऑलराइट। सो जैसे रिज्यूमे में काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि रिज्यूमे में कितने प्रोजेक्ट्स डालने चाहिए, तो आपने कितने प्रोजेक्ट्स डाल रखे रिज्यूमे में? I kept 4 projects. I think 4 is an ideal number. ऑलराइट, मतलब 3 to 4 प्रोजेक्ट्स इफ वी कैन कंसिडर। Yeah, even if you keep more projects, I don't think they'll see them. Like I was asked on my major project, like कैसे मेरा main project के बारे में ही पूछा था, Max. And resume walkthrough में I did explain all project. But majority they'll only see first one is important definitely. So pick that properly. And second is also okayish. Third, fourth इतने नहीं देखेंगे, पर resume walkthrough ऐसे हो गए तो they'll see them. They'll ask सर, questions. क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं होगा ना कि वो सबसे पूछ या तो एग्जैक्टली वो फर्स्ट देखेंगे एंड उनसे स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप लोग जो भी उसमें फर्स्ट में डालेंगे तो मेक श्योर कि वो आपका बेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स हो, आपने अब तक Mm. जितने भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे हो एंड उसके बारे में आप About एकदम अच्छे बताइए। yeah. Another tip I would like to give is in your first project that you keep, if it's a like a routine project, like I'm just giving a simple example, to-do list or ऐसा कुछ है तो, and this is a simple example, try to implement something new in it. Like जैसे try to implement a feature that impresses them. Like for example, what in my project there was a daily reminders. Like it can send daily reminders through mail. So ऐसे features they'll impress. Like these stand out. Yeah. और मतलब ऑलरेडी प्रोजेक्ट में, क्योंकि वैसे तो टू डू लिस्ट वाले प्रोजेक्ट को इतना बेटर नहीं आई थिंक कंसिडर किया जाता, इट्स अ नॉर्मल प्रोजेक्ट। Exactly. ठीक है, तो लेकिन Yeah, that's अगर what I'm उसमें telling. Mm. अपना कोई फीचर ऐड कर देंगे तो वो रिक्रूटर की डेफिनेटली मतलब उसके नज़र में आएगा कि मतलब ये चीज़ Yeah. स्पेसिफिकली ऐड करी है। ओके, ऑलराइट, ओके, Yeah. ऑलराइट, तो I ये think many people do see YouTube and take reference projects के लिए. So if you just keep that exactly, then I don't think it will add any value. So try to implement some new features, try to browse and try to bring out something new. एग्जैक्टली, मतलब अभी मैं पूछने भी वही वाला था कि काफ़ी स्टूडेंट्स कॉपी कर लेते हैं सीधा प्रोजेक्ट्स हो ना यूट्यूब से, गिटहब की रिपॉजिटरी का लिंक मिल जाता है वहाँ से एंड दे डायरेक्टली कॉपी देम। एग्जैक्टली, तो उसमें मतलब मैंने अपनी मतलब लास्ट की 2-3 पॉडकास्ट से मतलब मैं यही बात सुनता आ रहा हूँ कि कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लो लेकिन उसके अंदर 2-3 फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर दो।
जो उसको अलग बनानी थी, उसमें चेंजेस कर लो। अगर तुम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो कभी बार हो सकता है सामने वाले ने प्रोजेक्ट देख भी रखा हो, तो उसको समझ भी आ जाएगा कि तुमने एग्जैक्ट कॉपी कर रखा है, एंड वो बहुत बैड इंप्रेशन उनके ऊपर छोड़ कर जाएगा। तो इससे बेटर है कि उसके अंदर स्पेसिफिकली तुम कुछ चेंजेस कर दो, पूरा स्क्रैच से मत बनाओ, लेकिन चेंजेस कर दो। सो वो बेटर केस रहता है, इंस्टेड कि तुम कॉपी पेस्ट कर दो। Yeah. And also one more thing is that copy you can do, but you should be very good. Like you have to know every feature in it. Exactly. If you just copy and keep it, if we ask a question, if you're not able to tell it, then you're disqualified. Like I have seen many people, they just kept projects. They didn't prepare much. I was asked very deep questions on my project. So ऐसे questions पूछेंगे तो you'll be not able to answer. So I would say try to see video and do the project on your own. Like project link मिल जाएगा. Just see it for reference. Try to do it. सीखने के भी मिल जाएगा और you can even I mean you will even be able to answer the question that they ask. एग्जैक्टली वो तो स्क्रैच से बनाने का अपने बेनिफिट तो है ही, कि उसमें तुम्हारी अपने अपने एक एक प्रॉब्लम आएगी, देन उसको सॉल्व करोगे, तो वो चीज़ तुम्हें याद नहीं रखनी पड़ेगी। अगर तुम कॉपी पेस्ट करते हो प्रोजेक्ट को, देन वहाँ पे एक चीज़ आएगी कि तुम्हें थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, अगर तुमने सीख नहीं रखा तो सिर्फ वीडियो देखते चले गए तो। लेकिन स्क्रैच से बनाओगे तो तुम्हारे पास ये एक बेनिफिट रहता है कि फिर तुम्हें पता ही है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जो तुमने प्रॉब्लम फेस करी है, वो भी सामने। आई थिंक इंटरव्यू कभी कभार ये भी पूछता है कि आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी इसको बनाते वक्त। Yeah, exactly. This is their question. Yeah. एग्जैक्टली तो ये भी पूछता है। Hmm. ऑलराइट, तो स्टार्टिंग से अभी तक हमने सारे मतलब प्रेप से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अच्छा, आपने जैसे जब आपका राउंड क्लियर हो गया था, पहला राउंड क्लियर हो गया था, उसके बाद टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया था, सो इंटरव्यू से पहले मतलब क्या प्रेप वगैरह आपने किया था? Yeah. So when I cleared my technical round, I started with Striver DSSC. Okay. I mean SDE sheet. Yeah. Hmm. So that is for DSA, and I've seen some videos like for how to approach the interview. These are some basic videos, and I read some Medium articles on interview experience at Goldman Sachs. Hmm. So yeah, these are, and also of course revising CS fundamentals on Geeks for Geeks. एग्जैक्टली तो यही मेन कॉन्सेप्ट जैसे आपने पूछे थे, एंड बाकी जैसे आपने थोड़ा सिस्टम डिजाइन भी कहा कि पूछ लेते हैं, तो वो भी एक मेजर टॉपिक है। वही सिस्टम डिजाइन भी पता होना चाहिए आपको, अगर आप गोल्डमैन सैक को टारगेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड, मतलब एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। आई थिंक वो मेजरली ज्यादा नहीं पूछेंगे उसमें से, क्योंकि वो थोड़ा बाद का काम होता है। एग्जैक्टली। एंड अब थोड़ा सा इस बारे में बताइए, हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी, फिर डीएसए डेफ के बारे में बात करी, रिज्यूमे मतलब किस हिसाब से रखना चाहिए? क्या मिस्टेक्स आपको लगता है जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं रिज्यूमे क्रिएट करते हुए? Resume creation matlab, as I told, people just keep projects blindly. So there weren't any specific mistakes in resume, but some people just kept projects blindly and they didn't prepare much. So what happened was when interviews asked the question, they weren't able to answer, and I think they were disqualified. डिस्क्वालीफाइड। और Yeah. So yeah. हाँ, तो मेनली एक ये हो सकता है, एंड बाकी जैसे 1-2 चीज़ें तो मैं बताते ही रहता हूँ कि रिज्यूमे आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आप एक पेज पे लिखेंगे, दैट्स इनफ। एंड जो भी स्किल सेक्शन में आपने स्किल्स लिख रखी है, एंड उन स्किल्स को आपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रखा है, तो उसको स्पेसिफिकली हाइलाइट कर देना। क्या है, सीधा रिक्रूटर की ना उस पे ही नज़र पड़ती है, तो वो थोड़ा सही रहता है। और बाकी ये चीज़ रहेगी, एंड जो चीज़ जैसे प्रोजेक्ट्स में, तो नवीन ने आपको बताया कि जो आपका बेस्ट प्रोजेक्ट है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपसे वो उसी के बारे में पूछे जाएँगे। सो यही 2-3 चीज़ें हैं जो आई थिंक सबको ध्यान रखनी चाहिए। एंड बस एक ही रिज़्यूमे को हर जगह नहीं कॉपी पेस्ट करना चाहिए, हर जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, उसके कीवर्ड्स को देख लेना चाहिए, एंड वो रिज़्यूमे में यूज़ करने चाहिए। सो वो एक बेटर प्रैक्टिस रहती है। तो यही थी। सो जैसे ये आपकी ऑफ कैंपस इंटर्न थी, तो इससे पहले भी आपने कोई इंटर्नशिप में अप्लाई कर रखा है जिसमें आप रिजेक्ट वगैरह हो गए हो? I did apply, but I just got, I mean, I got eliminated in resume shortlisting itself. ऑलराइट, अच्छा उसमें मतलब लीव से पहले आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग था? Yeah, yeah. ओके। ऑलराइट गाइस, तो हमने इस कंप्लीट सेशन के अंदर सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग,
एंड इंटरव्यू क्वेश्चन सबसे रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। एट लास्ट नवीन आप अपने हिसाब से क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, जो कि चाहे CSIT ब्रांच से हो, चाहे नॉन CSIT ब्रांच से हो, लेकिन वो टेक में अपना करियर बनाने का ट्राई कर रहे हैं, इंटर्नशिप को ग्रैब करना सोच रहे हैं? हाँ, या। सो इन लोगों को आई वुड से ट्राई टू लर्न सम ऑफ द इम्पोर्टेंट CS कॉन्सेप्ट्स लाइक ऊप्स हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए, SQL. Try to learn in one in each semester. Like if you just sit at last and try to do, you won't be able to do. Even if you're able to do, I don't think you'll be able to answer some of those questions. Like interviewers try to ask very uh, like you have to think and answer those questions. So I don't think you'll be able to answer if you just did it like 1 week ago. So try to do it. Try to do one concept in each semester. So like OOPS, DBMS, and all this, and at last revise them before the interview. So like this, and focus on DSF course, and try to do some good projects and keep in resume. I think this should be enough. ऑलराइट। तो बेसिकली ये वही उस चीज़ की समरी है जो अभी तक हमने पूरा डिस्कस करा है। DSA, प्रोजेक्ट्स एंड आपके CS फंडामेंटल्स, इन सब पर आपको अच्छी तरह फोकस रखना है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच नवीन फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, एंड आई होप कि मेरे व्यूअर्स को भी सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से पता लग गया होगा। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई पुट योर लिंक्डइन हैंडल इन माय डिस्क्रिप्शन? Yeah, sure. ऑलराइट। सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट वगैरह है कुछ, आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं नवीन के साथ ऑन लिंक्डइन। तो गाइज आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। एंड जब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग अप।